Uh, Welcome to all of you in the online lectures. Uh, Now, in this class, we will continue some basic concept related to the previous class, and today we will solve some numerical also, right? On the basis of we have derived the equations, or we are going to derive. And second one, you people should I think go through. I already told the one time the same on the same concept. GATE 2018 or 19 was asked the same question on 2 marks. So hopefully you have referred that questions. If you're not referred, I will see and you people will solve. Okay. So since already 12:05 is there, so now I'm going to conduct your today class. So first I am just shared my today presentations, and presentation is nothing but because I'm totally related with your concept, right? So today's agenda is numerical aperture and group delay. Today we'll discuss first numerical aperture and then group delay. We will solve some numerical problem on numerical aperture. Then we'll continue for the group delay. Right. So as for the last class, since now we are all aware about the core, cladding, right, shielding, refractive index N1, N2, N, right. So the first time here you are able to see the medium one, right, medium one, right, and this is medium 2 core, and this is medium 3. So you are able to see medium 1 is refractive index N, right? Here core is N1 and cladding is N2, right? And we all are know about that one. N1 is greater than N2 for TIR. So कोई doubt नहीं है. So we'll proceed further, right? Now today we'll derive the equations for numerical aperture. So how you can define derive the numerical aperture? See. So here medium 1 is N. N is nothing but the refractive index of air. If refractive index is not related to the glass, SiO2 or SiO2 plus GO2, then it should be outside of this glass, and outside of the glass air will enter at the tip of the fiber at this point O. So this should be air, और air का refractive index क्या होता है? We already know 1, right? यदि आपको नहीं पता है तो always remember that refractive index of air is 1. So here the medium 1. Medium 1 will here the light will enters from A to tip of the fiber. Now since here the refractive index is higher, so A now meet at the point B, and if the critical angle is here greater than equal to 90 degrees, then TIR will happen. So construct again cut here, again reflected, again cut here. So in a study class I have already explained about the the constructive phenomena. Due to constructive phenomena, the standing wave pattern will be appeared, and that is the most important part for optical fiber for the long distance communications, right? Now here we are able to see here alpha is the acceptance angle, here is acceptance angle, right? And if the light will come here also, and then again move, and constructive phenomena is there, then alpha becomes the total acceptance angle is 2 alpha. But here we have defined the alpha is acceptance angle, right? एकदम पूरा एकदम clear आपको बताएगा कि acceptance angle you can consider with the 2 alpha and alpha, 2 alpha, or here define only the alpha, right? Now theta c is the critical angle. So I already told theta critical angle यदि greater than equal to 90 degree से होगा तो ये नीचे TR की तरफ बढ़ेगा. Okay. Now see the concept. If we will apply the Snell's law at O, so what is the relations? क्या relation होना चाहिए? Snell's law को हम लगाएंगे तो क्या relations होना चाहिए? तो roll number दिग्विजय unmute करो. दिग्विजय please unmute and tell me if we apply the Snell's law at O, what will be the relation? Here is the refractive N. Sir, N1 by N2 is equal to sin alpha 1 by sin alpha 2. N1 by N2 कहाँ आया यहाँ पे? Medium 1 क्या है? Refractive index N है ना बिटू? हाँ सर N.
और इंटर कर रहा है N1 पे, N2 तो अभी आया नहीं। N2 कहाँ आता? जब B पे करते तो बेटू, है ना, जब यहाँ पे करते तो N1 N2 आता। तो आराम से देख के बात कीजिए, रट्टाफिकेशन वाली बात मत कीजिए। इफ वी आर कंसिडर एट द पॉइंट O, देन व्हाट इज द रिलेशन? क्या कल मैंने क्या बताया था कि जहां से जाएगा रेज, तो N रिफ्रैक्टिवनेस N साइन अल्फा, N साइन अल्फा इज इक्वल टू किसमें जा रहा है बेटू? N1 और एंगल क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है ये? थीटा। थीटा। सो राइट डाउन द रिलेशंस एट O as per Snell's law is N sin alpha is equal to N1 sin theta, जो मैंने ऊपर भी लिखा है here. N sin alpha is equal to N1 sin theta, ब्रैकेट में लिख लो जो मैंने यहां नहीं लिखा है, at the point O as per Snell's law, right? समझ में आया नहीं आया? यस सर। पक्का? क्लियर? ओके। एंड क्रिटिकल एंगल के लिए क्या है? TIR कब होगा? TIR कब होगा बेटू? थीटा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिग्विजय, when TIR this rays will be reflected back here और कट करेगा एक्सिस ऑफ द फाइबर, when थीटा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। कितनी बार बोला मैंने क्रिटिकल एंगल, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटू? हाँ दिग्विजय, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्लीज रिपीट। हेलो हेलो हेलो, गुड। यस सर, यस सर, आ रहा है। हाँ अच्छा, तुम्हारा कनेक्शन का कल का भी प्रॉब्लम है, कनेक्शन ठीक करो, है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा पैकेट लॉस हो जाएगा, फिर उस पैकेट लॉस के बदले में बहुत ज्यादा BR आ जाएगा। BR समझते हो ना? सर यस सर। हाँ, इसका तो लॉस ही लॉस है। हाँ, रोल नंबर 25 बंद करो दिग्विजय, म्यूट करो। रोल नंबर 25 दिग्विजय म्यूट करो, कहाँ चल रहे हो? रोल नंबर 25, रोल नंबर 30, इट्स नॉट गुड। रोल नंबर 31, रोल नंबर 31, रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 31। हाँ, ये बताइए कि यदि कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो BR बढ़ेगा कि खराब अच्छा हो जाएगा? बीटा लॉस बढ़ेगा या कम होगा? सर लॉस बढ़ेगा। बढ़ेगा। बीटा रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? सर bit error rate is defined by the error रेशियो में बताओ, रेशियो of the error to the signaled bits transmitted, right? Number of bits, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स एरर आ रहे हैं, टोटल नंबर बिट्स में कितने में एरर भेजा हमने ना, यदि 100 भेजा और 3 एरर आया तो 3/100, राइट? 3/100, यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ बेटा ऑनलाइन रखना, नाम क्या है आपका? सर मुदक्किर। हाँ मुदक्किर। सो एट O N sin अल्फा इज इक्वल टू N1 sin थीटा। कोई डाउट है बेटू इसमें? नहीं सर। नहीं, आगे आपको डिफाइन करना है। नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा बेटा? ये थीटा, ये मुझे थीटा निकालना होगा तो वैल्यू क्या होगा बेटू? सो यहाँ पे थीटा सी देख लो, ये थीटा सी है, यस सर। इसको परपेंडिकुलर आगे खींच लो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा नहीं, ये वो छोड़ो, आगे का छोड़ो, ये कितना एंगल होगा बेटू? ये मैं थीटा ये परपेंडिकुलर खींच दिया नीचे की तरफ, यस सर, तो ये 90 डिग्री होगा। यस सर। तो π/2 लिख लूं? यस सर। सबको लिखते जाइए प्लीज, अपना ड्रॉ कीजिए पेपर में और ड्रॉ करते जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस प्रसाद वितरण हो रहा है, आपको ड्रॉ करना है, राइट? सो हियर ये पूरा फिगर को ड्रॉ करना है और एनालिसिस करेंगे हम। सो हियर अल्फा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा सी, इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे। नाउ दिस इज ऑन द π/2, सो थीटा शुड बी, बहुत अच्छा बताया मुदक्किर, क्या होगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा सी, क्योंकि 180 में से π/2 तो चला गया बेटू, तो वहां π/2 बचा। हाँ, तो π/2 माइनस थीटा सी बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ, तो लिखते जाइए सबको, हियर थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा सी।
कोई दिक्कत नहीं है, मुदक्किर बोल रहा है सब सही है तो लिख लीजिए। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा सी। इफ एनीवन हैव द डाउट प्लीज अनम्यूट। हम आगे चलते हैं। नाउ साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 बाई n cos थीटा लिख सकते हैं बेटो, यहाँ पे इस रिलेशन से ध्यान से देखना। अब क्या करो, अभी हमने थीटा का वैल्यू पुट कर दो मुदक्किर। यस सर। थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा बेटू, पाई बाय 2 माइनस थीटा सी लिख सकते हैं। यस सर। लिख दीजिए n साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा सी, सबको लिख लीजिए। और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा सी को क्या लिख सकता हूं मैं मुदक्किर, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा है तो ये cos थीटा बनेगा। cos थीटा, तो cos थीटा सी लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा इक्वल टू n1 बाई n cos थीटा सी। पक्का सही है एकदम। यस सर। हाँ आगे अभी कंटिन्यू रहना अभी, है ना। अच्छा ठीक है, आपका रोल नंबर 32, आप म्यूट हो जाओ। रोल नंबर 32 आपको कंटिन्यू करना है। यस 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 सर। हाँ बेटा थोड़ा आवाज जोर से बोलना, है ना। सो यहां तक ठीक है बेटा, साइन अल्फा इक्वल टू n1 बाई n cos थीटा सी। यस सर। ओके, क्या नाम है आपका? साकिब। ड्राइव कर रहे हो पेज पे ना? क्या सर? पेज पे लिख रहे हो ना? नहीं सर, मुझे दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, क्या नहीं दिख रहा है बेटू? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा थोड़ा नेटवर्क। रोल नंबर मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। रोल नंबर 33। यस सर। आपको दिख रहा है बेटू? यस सर, दिख रहा है साफ। तो साइन अल्फा इक्वल टू n1 बाई n cos थीटा सी में कोई डाउट नहीं तो नहीं है? नो सर। आपको अच्छा हम ये भी जानते हैं बेटा कि cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। यस तो यस लिख लिया, लिख लीजिए। सो नाउ साइन थीटा सी क्या होगा? साइन थीटा सी, अब बताइए साइन थीटा सी क्या होगा? सर हम सर पॉइंट बी पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हाँ पॉइंट बी पे, वेरी गुड। हमारे पास जाएगा n1 sin थीटा सी इक्वल टू n2 इंटू साइन 90। तो साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा, तो n1 sin थीटा सी इक्वल टू n2, तो साइन थीटा सी इक्वल n2 बाय n1। क्या नाम है आपका? वकास। अच्छा बकास बोल रहे हो। हाँ नेक्स्ट रोल नंबर कौन है? नेक्स्ट रोल नंबर 35, रोल नंबर 36। यस सर। हाँ क्या नाम है 36? मुस्कान। यस सर, मुस्कान शर्मा। हाँ साइन थीटा सी इक्वल टू n2 बाई n1 कैसे होगा? सर ये जो इस पॉइंट पे हमने वो लगाया, देखो एट द पॉइंट बी लिखवाओ सबको तुम। एट द पॉइंट बी एक्सप्लेन करो खुद। एट द पॉइंट बी आगे बोलो तुम। एट द पॉइंट बी एज पर स्नेल्स लॉ क्या होगा? n1 साइन थीटा सी इक्वल टू n2 साइन 90। 90। तो क्या 90 डिग्री है ना यहाँ पे दिख रहा है बेटू? यस सर, यस सर। तो फाइनल रिलेशन क्या आया बेटू? साइन थीटा सी इक्वल टू क्या आया? n2 upon n1 sin 90 डिग्री, तो sin 90 1 होता है। थीटा सी, तो ये इक्वेशन सही है। साइन थीटा सी इक्वल टू n2 बाई n1 लिख दूं? यस सर। लिख लीजिए। यदि मुस्कान बोल रही है और किसी को डाउट है तो इसे पूछिए कि नहीं ये गलत है। तो रोल नंबर 37, रोल नंबर 37, रोल नंबर 37 बेटा जल्दी, आगे बहुत कुछ करना है बेटा। 38, रोल नंबर 38 बेटू। हाँ cos थीटा सी इक्वल टू, हाँ cos थीटा सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सी। और sin थीटा सी इक्वल टू हमने क्या निकाला अभी बेटा? n2 बाई n2 sin थीटा सी निकाले ना, तो सर उसको पुट कर दिए sin थीटा sin स्क्वायर थीटा सी की जगह और cos। वेरी गुड। तो मैं cos थीटा सी का वैल्यू सही लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। अब sin अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? वो ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूला से, यहाँ से पुट कीजिए। क्या sin अल्फा इक्वल टू वैल्यू यही आ रहा है आपका सबका? यस सर। नहीं आराम से निकाल के, सबको बता रहे हो तुम। पहले अपने निकालो फिर बताओ कि हाँ सही है।
आपका क्या रोल नंबर है बेटू? 38। अच्छा, कौन बोल रहे हो? नील कमल। लीन कमल। क्लास sin alpha is equal to square root of n1 square minus n2 square by n, right? यस सर। ओके, सो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या क्या वैल्यू होगा? अब देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? साइन अल्फा, राइट? सो न्यूमेरिकल एपर्चर इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा, अब देखो ध्यान से कैसे आया न्यूमेरिकल एपर्चर, तो सी हेयर एक्सेप्टेंस एंगल ये था अल्फा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल, और मैंने कल बताया था कि साइन जो एक्सेप्टेंस एंगल है दैट विल बी कैलकुलेटेड। सो हेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज एक्सेप्टेंस एंगल, और उसी को हमने यहाँ पे क्या बोला है? न्यूमेरिकल एपर्चर। बट बोलेगा कि यदि दोनों साइड से रेज आ रहा है, रोल नंबर 38, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस सर। यदि रेज नीचे से भी जाए बेटू और ऊपर से भी आए, तो अल्फा बिकम्स यहाँ पे कैंसल हो। नहीं, एक रेज यहां से जा रहा है बेटू ओ पे, और ऊपर से भी एक रेज आ रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा अल्फा 2 अल्फा। 2 अल्फा, जो कल बताया था आपको। तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस, यदि देखना गेट में या कभी एग्जाम में, यदि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, सिर्फ एक्सेप्टेंस एंगल पूछे कभी लाइफ में, तो साइन अल्फा। यदि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल पूछे तो 2 अल्फा। प्लीज रिमेंबर दिस, और सब प्लीज सब अपने कान को खोल के सुन लो। यदि सिर्फ एक्सेप्टेंस एंगल बोले तो साइन अल्फा, बट यदि बोले मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल इज नथिंग बट 2 अल्फा। सो हाँ, तो दोनों न्यूमेरिकल करेंगे। पेट में पूछा था मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, और हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस एंगल इज साइन अल्फा। सो वहां पे रॉन्ग हो गया था और वैल्यू हाफ हमने पुट अप कर दिया था, या बहुत जिसको कॉन्सेप्ट होगा उसे तो बताया होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, नोट करके लिख लीजिए, एक्सेप्टेंस एंगल is alpha, but at the same time maximum acceptance angle equal to 2 alpha. Hence numerical aperture is equal to sin alpha. अच्छा, ये रोल नंबर 38 बताओ, ये n कहां भाग गया भाई? n स्क्वायर n। n1 स्क्वायर माइनस n2 इसका ये n कहां चला गया? सर ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर वो होगा क्लैडिंग माइनस कोर का, वो होगा। मैं वो तो ईयर का है ना 1। हाँ, कौन है? आकांक्षा 1 हो गया ना सर? हाँ 1, यस, लिख लीजिए। लेकिन हम इसको साथ में वैल्यू फाइंड भी करें, वो n बाहर ही आ रहा है, अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा है। नहीं, बाहर तो बात की बात है, पर यहाँ पे लिखिए n is equal to 1, since its refractive index is equal to 1, right? So that's why na is equal to sin alpha. तो सबसे पहले लाइफ में पूरी टाइम याद रखना, acceptance angle is alpha, maximum acceptance angle is 2 alpha. So write down numerical aperture is equal to sin alpha is equal to square root of n1 square minus n2 square. अब पूरा क्लास सुन लो, n को n नहीं है इस रिजल्टेंट में, क्योंकि n is equal to 1 हमने कंसिडर किया है फॉर द एयर। ठीक है, क्लियर? रोल नंबर 40। यस सर। रोल नंबर 40। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अब मैक्सिमम न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होगा? सर मैक्सिमम न्यूमेरिकल एपर्चर, हाँ लिखिए, na max is equal to क्या होगा? sin 2 alpha. 2 alpha, yes. So na max is equal to sin 2 alpha is equal to n1 square minus n2 square. किसी ने भी गेट का क्वेश्चन सॉल्व किया? किसी ने भी आपके क्लास में जो 2018 या 19 में पूछा है? यदि नहीं तो मैं भी सर्च करके देखूंगा, किसी ने भी नहीं किया। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास को वो शायद दोनों में देखा मैंने, 18 19 वो दोनों किसी में। और ईयर का है शायद, वो उस ईयर का नहीं है। 18-19 में नहीं था। 18-19 में नहीं है, 17 में भी नहीं मिला सर मुझे। नहीं भाई, मुझे 100% याद है, मैं भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। 18 में पूछा गया है शायद, या 19 में पूछा है, मैं आपको भेजूंगा अभी, जस्ट भेजूंगा 10 मिनट में, ठीक है? सो क्योंकि 3 पेपर होते थे, आपने तीनों पेपर नहीं सर्च किया होगा, राइट? 3 पेपर होते थे ना,
मतलब अलग अलग दिन पे मॉर्निंग हाफ और आफ्टरनून वाला। तो आपको शायद सारे अपने 6 पेपर नहीं देखे होंगे, राइट? तो कोई बात नहीं, आई विल सेंड, डोंट वरी। नाउ राइट डाउन न्यूमेरिकल। हम थोड़ा न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। ये क्लास जो है ना, ऑप्टिकल इज अ टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड। सो आप कभी भी मोबाइल लेके ना घूमे, अपना नोटबुक अपने साथ रखें, राइट? सो पहला क्वेश्चन लिखें, कंसीडर अ मल्टी मोड सिलिका फाइबर that has a core refractive index roll number 41 roll number 41 roll number 41 roll number 42 roll number 42 यस सर। हाँ रोल तो बोलो बेटा, नहीं तो फिर अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा मैं। जिसका मैं नाम बोलता हूँ उसने नहीं बोला, अटेंडेंस गया वो। रोल नंबर 42। यस सर, यस सर। हाँ बताइए बेटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये N1 होगा कि N2? सर N1। वेरी गुड, तो लिख लीजिए, सब इसका फॉलो कीजिए, सब इसका फॉलोअर बनिए। N1 इक्वल टू 1.480। फंटास्टिक। N1 इक्वल टू 1.480। मैं ये प्रॉमिस किया था पहले भी और आज भी बोल रहा हूं कि ये किसी भी इंटरव्यू में आप इस सब्जेक्ट को आप बोलेंगे और आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आप चाहे पढ़े ना पढ़े, सिर्फ आप ऑनलाइन क्लास करें या जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ उसको सिर्फ करना है आपको। यू शुड बी रिप्लाई एटलीस्ट, मतलब जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आप जरूर रिप्लाई करेंगे। तो N1 इक्वल टू 1.480 एंड क्लैडिंग इंडेक्स N2 is equal to 1.460. Cladding index N2 is equal to 1.4680. ठीक है। रोल नंबर 42, N1 है 1.480 और N2 है 1.460। सही है ये? यस सर। क्यों सही है बेटा? सर हाँ बोलो सर, क्योंकि N1 की वैल्यू ज्यादा होती है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर रोनित। हाँ वेरी, थैंक यू रोनित, थैंक यू। सो वेरी गुड। नाउ फुल स्टॉप। फाइंड पहला ए द क्रिटिकल एंगल। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, पहला फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल को। दूसरा फाइंड आउट करना है बी, लिखिए न्यूमेरिकल एपर्चर। फाइंड द न्यूमेरिकल एपर्चर। एंड सी फाइंड आउट करना है एक्सेप्टेंस एंगल। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द न्यूमेरिकल एपर्चर, फाइंड द एक्सेप्टेंस एंगल। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द न्यूमेरिकल एपर्चर, फाइंड द एक्सेप्टेंस एंगल। और जिसको मैं बोलूंगा वो बताएगा विद इन। मैं 3 क्वेश्चन है तो मैं 3 मिनट्स देता हूं आपको, और जो सॉल्व कर लोगे वो मुझे बता देना। मैं स्कैप कर रहा हूं और उसके बाद मैं देखता हूँ। एक बार N2 की वैल्यू रिपीट करना। N2 1.460। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, N1 इक्वल टू 1.480 और N2 की वैल्यू 1.460। सिर्फ 49 स्टूडेंट्स आपके अभी भी अपियर हैं। 6 चलो आज मैं अटेंडेंस अपलोड कर दूंगा सबका।
रियली बैड, 15 बच्चे नहीं है इसमें। जिसका बन गया हो प्लीज मैसेज डालो इसमें चैट में। लबीस 80.57, फंटास्टिक, गुड लबीस। लबीस आपका एक आंसर सही है, कोई भी बोलेगा नहीं, चैट में डालोगे। एटी 80.60, रिया खजूर 80.10.9। रिया पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। 21.68, 14 न्यूमेरिकल पर 0.24। हाँ वेरी गुड। हु इज दिस? अभिषेक यू आर राइट। न्यूमेरिकल पर्चा आपका सही है। नीलकमल आपका भी सही है, 0.24। हाँ सही है। गर्मा का भी सही है। विष्णु महादेव प्लीज कॉपी मत करना, खुद से लिखना। विष्णु सही है आपका बेटा, आराम से सॉल्व करना है सबको, बिकॉज दिस इज बेसिक्स राइट, और बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं कहीं पे। एक्सेप्टेंस एंगल 14 डिग्री, फंटास्टिक गर्मा, गुड, एकदम सही है। मुदक्किर क्रिटिकल एंगल 80, एकदम सही है बेटू, मुदक्किर सही है। एक्सेप्टेंस एंगल 14, हाँ 14 एकदम सही है। गर्मा आपका सही है, देख लिया मैंने, आपका सही है। सीरिया न्यूमेरिकल पर 0.24 एकदम सही है। तीसरा बताइए, पहला दोनों सही है आपका। थर्ड बताइए। बासु महाजन 0.23, अच्छा हाँ थोड़ा आगे पीछे ले लिया होगा आपने, 0.24 होगा, नहीं 0.24। और so now we will stop and because हमें आगे भी प्रोसेस करना है राइट। ऐसा नहीं कि हम इसी पे वो करते रहें, फोकस करें, ये है ना, आगे भी हमें पढ़ाई करनी है। सो बासु 0.24 and 14, यस बासु शर्मा राइट, आपका तीनों सही है, एकदम सही है, गुड। सो वी विल वेट फॉर 1 मिनट, सब कर पाए हम, आराम से करो, कोई बात नहीं, टेक 1 मिनट टाइम मोर। हो सकता है कैलकुलेटर नहीं हो तो कैलकुलेटर लेके बैठे राइट। हाँ ये टाइम है, अब आपको सब कुछ पता है कि हमें क्या क्या जरूरत है। कैलकुलेटर लेके बैठे, सिस्टम लेके बैठे, नोटबुक लेके रहें, है ना। मैंने पहले बता दिया कि ये क्लास वैसा नहीं है कि हम ऐसे पूरा मैथमेटिक्स रहेगा, और मेरा भी कल परसों आ जाएगा पैड, तो फिर मैं तो बताया हूँ कि मैं खुद से लिखूंगा और वो करूंगा। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद बासु के बाद कोई लिखा ही नहीं चैट में। आकांक्षा क्रिटिकल एंगल, यस वेरी गुड, आकांक्षा इज राइट, एकदम सही है आकांक्षा। दीपाली शर्मा न्यूमेरिकल पर्चा सही है बेटा, तीनों निकालिए। अब एक बार में चैट में तीनों डालिए। मुस्कान, बकास, नहीं सिर्फ एक, नहीं मुस्कान जी एक बार, हाँ हाँ। आर्यन सही है बेटा, आर्यन सही है,
एकदम न्यूमेरिकल अपर्चर भी सही है मुस्कान। एक्सेप्टेंस एंगल, सॉरी एक्सेप्टेंस एंगल सही है। न्यूमेरिकल अपर्चर 0.28, नो 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 0.24। सर बोलो बोलो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है बोलो बेटा। सर, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे 90 से कम क्यों आ जा रहा है? क्या चीज के लिए? क्रिटिकल हाँ, एंगल पर लेस देन 90 क्यों आ रहा है? करता हूँ, आपका आ रहा है ना 80.5। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें टी आई नहीं होगा, है ना? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटू? हाँ यस सर। हाँ एक्सप्लेन सर, करूंगा आ मैं रही अभी। अभी ये तो न्यूमेरिकल है ना, ये तो प्रैक्टिकल कंडीशन दिया है ना, नहीं दिया है ना? ओके सर। This is the only for analysis purpose, right? This is not a practical condition. ये इसने नहीं बोला है कि इसमें TIR होगा ही नहीं होगा, यदि पूछेगा तो नहीं होगा, है ना? गुड ऑब्जर्वेशंस। यदि आपसे पूछा जाए कि इन दिस कंडीशंस TIR will be possible, तो नो, राइट? सो ओके, गरिमा अनम्यूट करो, गरिमा घई। यस सर। हाँ, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला, एक्सप्लेन करो पूरी क्लास को। सर फॉर्मूला लगा कि n1 sin थीटा c इक्वल्स टू n2 sin पाई बाय 2। वेरी गुड। तो तो थीटा इसमें सी इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स n2 बाई n1। यस सर, तो इसे 80.4। सो सारे क्लास समझ लो, थीटा सी जो निकाला इसने साइन इनवर्स n2 बाई n1, राइट? और उसके वैल्यू पुट कर दिए और वैल्यू आ गया 80.5, राइट? यस सर। तो पहला आंसर है 80.5। न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे निकाला? सर अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यस, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.242। वेरी गुड। एंड थर्ड, एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकाला? सर एक्सेप्टेंस एंगल होता है अल्फा और हमारे पास है साइन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट, जो वैल्यू अभी बोली 0.242 निकाली हमारी, तो साइन अल्फा हो गया 0.242, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर 2. से आ गया 4। So the answer is theta A. Theta is the acceptance angle is equal to sin inverse NA, numerical aperture, right? तो हमेशा यदि आप एक बार में निकालना हो तो क्या करेंगे? थीटा जो वैल्यू थीटा A is equal to sin inverse numerical aperture, right? यस सर। तो वो वैल्यू आ गया 14 डिग्री। सो होपफुली सबने इसको कैलकुलेट किया होगा और आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली सॉरी न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, राइट? एंड एट द सेम टाइम उनके ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि सर यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल का जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। यस, लेस देन 90 डिग्री है, तो वी नो दैट कि हमारा कितना डिग्री होना चाहिए, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन लिखो। प्लीज राइट द सेकंड क्वेश्चन। Consider a multi-mode fiber. Consider a multi-mode fiber that has a core refractive index. That has a core refractive index of 1.480. जैसा पहले था, core refractive index is equal to क्या है? 1.480. 1.480 and core cladding index difference. core cladding index difference, core cladding index difference को लिखते हैं डेल्टा, डेल core cladding index difference del is equal to sorry core cladding index difference is the 2%, is the 2%. डेल्टा जो है वो है 2%, ऐसा लिख लीजिए, डेल इज इक्वल टू 2%. देन फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल
एंड क्रिटिकल एंगल, तीनों चीजें निकालनी है। बट यहाँ पे N2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डेल दिया हुआ है। सो राइट डाउन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इंडेक्स डिफरेंस रिलेटेड विथ N1 and N2 एज फॉलोज। इंडेक्स डिफरेंस डेल is related with N1 and N2 as follows। कैसे? तो लिख लीजिए N2 is equal to N1 into 1 minus del, और एक चीज और लिख सकते हैं, del is equal to एक बार लिख लीजिए N1 minus N2 by N1, और del is equal to N1 minus N2 by N1। एक तो लिख सकते हैं N2 is equal to N1 into 1 minus del, या del की वैल्यू लिख सकते हैं N1 minus N2 by N1। So this is the relation of index difference. Delta is known as index difference, and how we can calculate the index difference? Del is equal to N1 minus N2 by N1, or N2 directly calculated as N2 is equal to N1 into 1 minus delta, जो भी आप यूज करना चाहेंगे तो चलेगा। बट इसमें एक चीज और बता रहा हूं जो बहुत बार पूछा जाता है कि आप सर मल्टी मोड की बात कर रहे हैं, मल्टी मोड में TIR होना इज डिफिकल्ट, इसलिए मल्टी मोड फाइबर में जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के हर बार 90 डिग्री से ज्यादा नहीं आ रहा है। बट इट्स ओके, दैट इज द थ्योरेटिकल थिंग, हम बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। नाउ आर्यन कुछ पूछना है? सर डेल्टा की वैल्यू, सर डेल की वैल्यू हमने क्या बोली थी? इंडेक्स डिफरेंस इज इक्वल टू N1 minus N2 by N1। इस क्वेश्चन में हाँ अच्छा नहीं, ये 2%, डेल इज इक्वल टू 2%। ओके, सो ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि मल्टी मोड क्यों, सिंगल मोड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर आप? हर क्वेश्चन में मैं दिख रहा हूं मल्टी मोड, right? So always remember that for short distance communications we will prefer multi mode, for long distance communication we will prefer single mode। दोनों में अंतर क्या होता है? So main अंतर लिख लीजिए, डिफरेंस दोनों में अंतर, मल्टी मोड फाइबर और सिंगल मोड फाइबर का कोर डायमीटर जो है ना बेटा, कोर डायमीटर में अंतर होता है। तो लिख लीजिए कोर डायमीटर फॉर सिंगल मोड फाइबर, core diameter for single mode fiber is equal to 6 to 7 micrometer। 6 to 7 micrometer दिखेगा नहीं, आंख से बहुत मुश्किल होगा देखना, उसको आपको स्कोप करके देखना पड़ेगा, बहुत जूम करके देखना पड़ेगा। तो 6 to 7 micrometer, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस कि कोर का जो कोर डायमीटर होता है, सॉरी सिंगल मोड का, वो बहुत छोटा होता है। सेकेंड, मल्टी मोड कोर डायमीटर इज इक्वल टू, मल्टी मोड कोर डायमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 50 to 60 माइक्रोमीटर। 50 to 60 माइक्रोमीटर, 502 से लेके 60 माइक्रोमीटर। सो ये थोड़ा बड़ा होता है, तो ये आंख से दिखेगा भी। और जो फाइबर मैंने उस दिन दिखाया था आपको पहले क्लास में, अब कल से मैं अपने ही लैब में रख लूंगा सारा, जो कभी भी दिखा पाऊं, तो वो उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो दिखेगा कोर, बट सिंगल मोड का कोर नहीं दिखेगा। कभी आपने रियल टाइम डिप्लॉयमेंट होते हुए देखा होगा सड़क के किनारे, जैसे अभी जियो फाइबर और हर जगह इंस्टॉल करते जा रहे हैं लोग, और अलग अलग कंपनी भी यूज कर रही है, तो जब आप वो देखोगे फाइबर तो आपको दिखेगा नहीं, इतना थीन होता है इसका कोर, राइट? उसका कोर आप देख नहीं पाएंगे। सो कोर का डायमीटर कम होने से और ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बताएगा रोनित। रोनित अनम्यूट करो, और सिंस तुमने देखा नहीं है फाइबर, बट कमेंट कर सकते हो कि कोर डायमीटर ज्यादा होने से और कोर डायमीटर कम होने से प्रैक्टिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रोनित रोल नंबर 42। हेलो सर, कोविड करना एक बार। हाँ, यदि मेरे पास दो फाइबर है, एक का कोर डायमीटर ज्यादा है और एक का कोर डायमीटर कम है, तो मैंने बताया कि कोर डायमीटर कम है तो दैट मीन सिंगल मोड, और इफ द कोर डायमीटर इज लार्जर इज अ मल्टी मोड। तो क्या अंतर हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली देखो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा मल्टी मोड फाइबर में और सिंगल मोड फाइबर में बेटू? एक देखो ध्यान से सब देखो, ये एक सरफेस ये है कोर इतना बड़ा पेन का, और एक कोर इतना बड़ा है। तो बताओ रोनित,
दोनों में अंतर क्या होगा? ये टिप ऑफ द फाइबर है, ये टिप ऑफ द फाइबर है कोर का, इसका सिंगल मोड मल्टी मोड का, और ये है सिंगल मोड का। तो ये इतना बड़ा सरफेस है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा और इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर ज्यादा सरफेस होगा तो ज्यादा डाटा सेंड कर पाएंगे, ज्यादा कोर का। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि यदि बड़ा कोर होगा तो ज्यादा डाटा सेंड कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हो तुम? यस सर, यस सर। नहीं। कौन कमेंट करेगा? सेकंड चैट में मैसेज डालो। एनीवन वांट टू कमेंट? नहीं, अभी आंसर नहीं पूछ रहा हूं आगे का, प्लीज अभी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। डेटा रेट कम होगा। वेरी गुड। विमर्स अनम्यूट करो। थैंक यू। विमर्स बताइए क्यों कम होगा बेटू? रोल नंबर 64। हाँ हाँ, क्यों कम होगा बेटा? राइट, कैसे कम होगा? जितना सर वो बढ़ जाएगा सर, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वेरी गुड। क्यों कम हो जाएगी? ये तो अब वो विजुअलाइज कोई बात नहीं, तुम सही बोल रहे हो। बकास अनम्यूट करो। रोल नंबर 33। यस सर। हाँ, क्यों? यदि मेरा कोर का डायमीटर बढ़ जाएगा तो विमर्श सही बोला कि डेटा रेट कम हो जाएगा और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होता है बेसिकली, जितना ज्यादा लाइट आएगा ना टिप ऑफ द फाइबर में, जितना ज्यादा लाइट आएगा तो एक दूसरे से इंटरफेरेंस करेंगे, और एक दूसरे से इंटरफेरेंस करने के कारण इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। सो लाइट, हम चाहते हैं क्या? कम से कम लाइट जाए, सो इंटरफेरेंस कम से कम हो एक दूसरे लाइट में। सिंगल मोड में क्या होगा? एक ही लाइट जा पाएगी एक एक्सिस के थ्रू, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस ना के बराबर होगा। मल्टी मोड में तो इंटरफेरेंस होगा, कम कर सकते हो, जितना कोर डायमीटर कम होगा उतना अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द कोर डायमीटर इज इंक्रीजेस, maximum light, more light will be entered or impinges on the tip of the fiber, so interference will be appear, so intensity will be decreased. This is the concept. यदि सिंगल मोड है, एक ही लाइट जा पाएगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इसके कारण आपका इंटरफेरेंस कम हो पाएगा और ज्यादा डाटा रेट सपोर्ट करेगा। सो लाइफ में कभी भी पूछे कि सिंगल मोड मल्टी मोड में क्या अंतर है, तो सिंगल मोड फाइबर only one fiber can be propagate inside the along the axis of the fiber, so there is no interference. But in the case of multi-mode fiber, since the core tip of the at the tip of the fiber core diameter is larger, more light will be impinges on the tip of the fiber, more interference will be appear, intensity goes down, so data rate will be reduced. This is the basic concept of the multi-mode and single mode. What are the difference in the core diameter? They are 5 to 7 micrometer in single mode, in multi-mode 50 to 60 micrometer. So this is the basic concept of single mode and multi-mode. मुझे समझ में आ रहा है, होपफुली आप सबको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सो चैट में बहुतों ने सपोर्ट भी लिखा भी होगा, बट हम अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले जो चैट में डालते जाओ, फिर मैं पूछता हूँ। लबीस, न्यूमेरिकल अपर्चर इज 80 न्यूमेरिकल, नो गलत है। थीटा, एक रिया खजूरिया, न्यूमेरिकल पर 0.29 एकदम सही, एंगल 17 सही है। हाँ, रिया इज राइट। गरिमा एकदम एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर सही है। आगे बताओ। बासु शर्मा एकदम सही है। वेरी गुड। गरिमा हाँ, आगे सही है। वेरी गुड। इंसा 78.52 एकदम सही। ओके, वेरी गुड। सो बहुतों ने सॉल्व कर लिया। सो मेरा जो पर्पस था आज का एजेंडा, वो लगभग फ्रूटफुल है, एंड यू आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। सो इंसा याकूब शेख, रोल नंबर 23, काइंडली अनम्यूट। यस सर। हाँ, और थोड़ा वॉइस, खाना वाना खाया आपने? यस सर। हाँ, तो यदि खाना खाया है तो थोड़ा जोर से एक्सप्लेन कीजिए कैसे कैसे निकाला। सर पहले N2 निकाला डेल्टा को लेके, जो फॉर्मूला। वेरी गुड। N2 कितना आया? सर N2 आया 1.4504। वेरी गुड। सबको कंफर्म है ना? इंसा बताती जा रही है, आप लिखते जाइए जिससे नहीं सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले
INSA has calculated N2 and that is equal to 1.450 and once they have calculated the N2 तो बाकी तो सब तुरंत निकल गया होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर कितना आया बेटू, कैसे कैलकुलेट किया? सर अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और वो कितना वैल्यू आया? 0.294। 294, वेरी गुड। और उसके बाद क्या पूछा था मैंने? एक्सेप्टेंस एंगल, सर उसका साइन इनवर्स लिया, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर कर दिया, राइट? जी सर। कितना वैल्यू आया? 17.09। 7.09 और 17.2 नियर अबाउट आएगा, ठीक है। कैसे निकाल रही हो? कैलकुलेटर है आपके पास? यस सर। वेरी गुड। और क्रिटिकल एंगल क्या है बेटू? 78.52। क्या इसमें TIR हो पाएगा? नहीं सर, 90 से कम नहीं होगा। सो वेरी 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 थैंक यू, आपने इसको कैलकुलेट किया और मुझे लगता है कि इनसा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया आपको? यस सर, बट थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है तो। हाँ। सो मैं लेक्चर जो भेजता हूँ उसको देख लेते हो आप? यस सर। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँ और आज का भी मैं कर देता, बाद में कुछ 2 मिनट के खुद आप स्टूडेंट्स कुछ बात कर रहे थे इसलिए मैंने अभी इसको स्टॉप कर दिया, बट विद इन 1 आवर मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी अपलोड कर दूंगा, राइट? सो और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है जितना मैंने बताया अभी तक? सर है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि सर जो आप प्रेजेंटेशन देते हो ना तो हाँ। मेरा फ्रीज हो जाता है स्क्रीन, तो वो मुझे फिर बाद में देखना पड़ता है। नहीं तो वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है क्या? सर अभी लगवाया है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे लगाने में। अच्छा, फिर ठीक हो जाएगा? फिर ठीक हो जाएगा सर। हाँ, वेरी गुड। मुझे यही फीडबैक चाहिए सबसे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या। अदरवाइज बाद में रेफर कर पाते हो लेक्चर, बाद में वीडियो लेक्चर देख पाते हो? उसके बाद में देख पाती हूँ। उसे समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। तो और आपने डाटा सब दे दिया? यस सर, दे दिया। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। नाउ किसी को कोई डाउट है वो तो चैट में प्लीज मैसेज कर दीजिए। जैसे मैंने इंसा से पूछा, सबसे मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। नो डाउट यदि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो भी मुझे बता दीजिए सो दैट कि मैं सही टाइम पे अपलोड कर पाऊँ सारे लेक्चर्स को। एंड कोई और प्रॉब्लम है और समझ नहीं आ रही है तो प्लीज उसको भी बताइए, जब तक बताएंगे नहीं तो हम समझ नहीं आएगा। सो आज हम टुडे न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में हमने देखा एंड होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टूड द डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, राहिल आप तो जम्मू में हो ना बेटा? नहीं, कहाँ पे हो राहिल? कश्मीर में। ओके ओके ओके। सो ट्राई, बिकॉज द कंडीशन इज पता है तुम्हें क्या है। सो अब ट्राई करो सबको अपने घर पे ब्रॉडबैंड लेने का, राइट? प्लीज, है ना? अभी ठीक है, जब आओगे यहाँ पे तो वापस कर लेना, बट 2-3 महीने के तो लगा लो। अभी कम से कम जनवरी फरवरी तो जाएगा मुझे लग रहा है, जैसा सिस्टम चल रही है और भी केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल मूव। मुझे मेल कर दीजिए जिसको ये प्रॉब्लम है, so that I can help you through phone also. यदि कुछ प्रॉब्लम है तो I can reach out. Okay, so आज मैं लास्ट एजेंडा में चल रहा हूँ, that is known as एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले, देन मूव करेंगे। 5 मिनट्स और है जिसमें आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, उसको बोलते हैं। अच्छा, entire screen here. बकास मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट एजेंडा फॉर टुडे एंड दैट इज नोन एज ग्रुप डिले, राइट? द कॉन्सेप्ट इज नोन एज ग्रुप डिले। तो थोड़ा आगे भी बढ़ते जाएं, न्यूमेरिकल भी कर लिया, थोड़ा आगे भी बढ़ना जरूरी है बिकॉज प्रॉब्लम तो है बट विल डू समहाउ। सो ध्यान से देखना, आराम से सब देखो। अब कॉपी बंद भी कर सकते हो बट समझना जरूरी है। तो नाउ हियर सी वी नो दैट दिस इज अल्फा इज एक्सेप्टेंस एंगल, और यदि बोला जाए मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल इज दिस वन, राइट? और दिस इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। नाउ लेट अस assume that, see here what the phenomena is going on. Here one light is moving, TIR happen, cut, very good. But if there more than one light, जो मैंने पूछा था मल्टी मोड फाइबर में,
in multi-mode fiber, interference is there, and due to interference, intensity goes down. This is a practical case study. How the practical case study we can refer this? See, if एक लाइट यहाँ पे था बेटा, है ना, एक लाइट ऐसा तो चला गया, सॉलिड लाइन. नाउ एक another light will be pass here, जो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, and that will be dotted lines, so that will move here. Third angle here, fourth here. So क्या हो रहा है? What is the phenomena is there? If more than one light will be passed at the tip of the fiber, and at the tip of the fiber the angle will be varied, alpha dash, alpha double dash, alpha triple dash, then as per the incident angle they will reflect it in the differently, right? Initially the pulse was this type. Input light pulse is pulse 10 10 10. So मैं 1010 का durations मेरा ये है. Let us assume that this time t, but due to this, see देखना, due to multiple interference light they will move in different, right? So क्या हो रहा है? There is some delay. पल्स को यहाँ पे खत्म होना था, बट पल्स हो रहा है आगे खत्म, राइट? सो देयर इज अ डिले इन टी में, टी का डेल्टा टी का, इसमें डेल्टा टी डैश का, इसमें डेल्टा टी डबल डैश का, इसमें डेल्टा टी डबल ट्रिपल डैश का. सो देयर इज अ डिले इंड्यूस्ड इन द कोड और चैनल. सो मल्टी मोड फाइबर हैज very big disadvantage. If more than one light will be passed or strikes at the tip of the fiber, they will move and reflect it back as a TIR. But एक अल्फा तो वेरी गुड, अल्फा डैश आएगा तो चेंज हो जाएगा, अल्फा डैश आएगा, डबल डैश आएगा तो और चेंज हो जाएगा. सो एट डिफरेंट इंसिडेंट एंगल दे विल चेंज. यदि सिर्फ एक ही लाइट होता तो ये सीधे पास कर जाता है एक्सिस ऑफ द फाइबर, वेरी गुड. बट मोर देन वन लाइट will be produce the interference. How? So if the time t is the pulse duration is required, so here the pulse durations क्या हो गया? t से डेल्टा t हो गया. थर्ड की बात, सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा वकास? t इक्वल टू क्या होगा? अब t क्या बदल जाएगा वकास? यस सर. यदि मैं इस पल्स की बात कर रहा हूं, एक पहले वाले पल्स की, तो t प्लस डेल्टा t है. मैं इस पल्स की बात करूंगा तो t प्लस डेल्टा t प्लस क्या हो जाएगा? एक और डेल्टा टी, टी प्लस 2 डेल्टा टी. यस, फिर और आ जाएगा तो सो टी प्लस वही टी प्लस एन डेल्टा टी, टी डेल्टा टी है ना, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5. यदि सेम दोनों में डिले है तो डेल्टा टी, अदरवाइज डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी डबल डैश प्लस डेल्टा टी. सो देयर इज, इसको इस सारे डिले, एक डिले है डेल्टा टी इज द वन डिले, इसको बोलते हैं सिंपल ना वन लाइट डिले. बट सारे डिले मिल जाएंगे उसको क्या बोलेंगे बेटू? सारा डिले, ये पूरा इसमें जितने भी लाइट थे सारा मिलके यदि डिले करेंगे तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? ग्रुप डिले. ग्रुप डिले. So multi-mode fiber has one concept that is known as group delay concept, and how that will appear in the group delay in the optical channel due to this phenomena. Since initially the pulse is t, but after the multiple light, they will induce the delta t plus delta t plus delta t plus delta t. So if the combined all the delay delta t, that is known as group delay phenomena in the channel. So कोई पूछे what is the main disadvantage in the multi-mode fiber, that is known as group delay phenomena, right? So आज मैं ये इसको हिंट दिया हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ें. कल मैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आई विल शो द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द ग्रुप डिले, और उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हम करेंगे. उसके बाद हम ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा. सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना का जो टीआई वाला रेड रेड ग्रीन 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 ब्लू वो वाला जो कंसेप्ट था वो उसके साथ हम करेंगे, तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा. क्या था कंसेप्ट विकास? आर जीजी बीबी में क्या बोलते थे, कौन सा कंसेप्ट बोलते थे? सो वही जो जिसका सेम कलर है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, इसमें डिफरेंट है. So we will prove with the proper diagram कि रेड आने के बाद पीक आ जाता है, ग्रीन आने के बाद पीक आ जाता है, पर रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन और अलग से डिस्कंस्टिव होने से
आपका क्रेस्ट आ जाएगा, वैल्यू बहुत लो हो जाएगी, वी विल प्रूफ इन द मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली आल्सो. So hopefully you understood the basic concept of the numerical aperture. And मैं हर क्लास में ही कर रहा हूँ, पहले का थोड़ा सा मैं रेफर करता हूँ, फिर आज के एजेंडा को पूरा करता हूँ और एक अगले एजेंडे को मैं रेफर करता हूँ जिससे कि आप उसको पढ़ पाएं, राइट, और समझ पाएं. सो होपफुली आज के क्लास में आप जो आपको मैंने बताया आपने उसको अंडरस्टूड किया होगा. सो 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ एंड देन we will free, right? Or please don't talk anyone after this 1-2 minutes because मुझे फिर से उसको reset करना पड़ता है बेटा, है ना? Just a minute. Roll number 1. Yes sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No sir. Roll number 2. Roll number 2. Yes sir. हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर. रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. The 4 है डायरेक्टली. 4. रोल नंबर 4. हाँ बेटू समझ में आ रहा है? नेटवर्क नहीं है आपका, माइक नॉट वर्किंग. ओके, सब वर्किंग होना चाहिए. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5. रोल नंबर 6. चलो अब आगे से मैं क्लास में अटेंडेंस लूंगा, जैसे अटेंडेंस लेता था ना वैसा लूंगा. ये कुछ और ही कहानी चल रही है. आकांक्षा प्लीज सबको आप बता दो कि अगले क्लास से मैं ये 1, 2, 3 जैसे क्लास में लेता हूँ वैसा अटेंडेंस लूंगा. ठीक है बेटू? हेलो. हाँ, रोल नंबर क्या है बेटा? ओके सर. समझ में आया आपको बेटू आज जो पढ़ाया मैंने? हाँ जी सर. हाँ जी. चलो फोन बंद करो. चलो ऑल द बेस्ट बेटा. थैंक यू ऑल ऑफ यू.